Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today I will explain the question of 2018 asked from the subject material science. Maximum of the question has been asked from the material science in this year, so you can expect in 2021 the number of question of the material science will be high because ये आपका सबसे ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। तो होपफुली आपने मेरी वीडियो सुने होंगे, मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट में सारा टॉपिक कवर किया हुआ है आपका मटेरियल साइंस से रिलेटेड। तो प्लीज़ इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप पुरानी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने मटेरियल साइंस को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 की क्वेश्चंस को। Now the first question was related to basic 12th physics. Consider the following characteristic with respect to alpha particle. You have to know that what is alpha, beta and a gamma particle and what are their properties. The first statement was they have a large specific ionization value. Second, they dissipate their energy rather slowly. Third is they can penetrate the outer layer of human skin. Fourth is their emitters are heavy element. So here we can say that the 1 and 4th statement is correct. They have a large specific ionization value. Actually in my video I have characterized in the row and column wise what are the specification, what are the characteristics of alpha, beta and gamma particle. This table will help you to solve these type of questions. Here the statement 2 and 3 is wrong. They can penetrate the outer layer of human skin. This statement is not correct. Here A1 and 4 is the correct statement, so A option will be the right option. Now move to next question. A Hall effect may be used to. This is the favorite question of UPSC. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईसी से हैं देन यू कैन रिलेट इट बिकॉज ये ईडीसी में भी पूछा जाता है और एक नहीं एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स जब से यूपीएससी का एग्जाम शुरू हुआ है तब से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और मटेरियल साइंस में भी अब पूछा गया है, बट यू कैन एक्सपेक्ट इट कि दिस क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड इन 2022 विद लिटिल बिट चेंज इन स्टेटमेंट. The Hall effect can be used to determine whether semiconductor is p-type, n-type, determine carrier concentration, calculate the mobility. All the three statements are correct. Apart from this, Hall effect is used to determine drift velocity, conductivity of specimen and as well as calculation of magnetic field. तो ये तीनों चीज़ें भी और याद रखिएगा. इसके अलावा maybe in the next coming year option may be changed with these other three statements. So here 1, 2, 3 all the statement are correct. Move to next question. Consider the following statement. Material science deal with the strength and stiffness behavior of a component, building machines, vehicle facility based on their response to imposed stresses. Second statement is material properties are dependent on their microstructures and response to force field and surface tension. तो here according to me both the statement are correct. यानी यहाँ पर ये आपका जो बेसिक डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बना है जो मटेरियल साइंस का है, यानी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. बट जो यूपीएससी की आंसर शीट आई थी उसमें जो ऑप्शन आया था वो था आपका ओनली 2 करेक्ट. ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो आप कभी कभार देखेंगे कि आप जितने मार्क्स ऐड करते हैं वो उतने मार्क्स नहीं आते हैं क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक होती है वो आपकी यूपीएससी के ही सोल्यूशन से चेक होती है. तो यूपीएससी का सोल्यूशन उन्होंने जो दिया था वो 2 ओनली दिया था, बट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है और अकॉर्डिंग टू मी जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो बोथ 1 and 2 करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लॉन्ग फर्स्ट स्टेटमेंट पे मूव करते हैं. लॉन्ग चेन पॉलीमर आर वीकर देन मोस्ट सेरामिक एंड मेटल्स. सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग मॉलिक्यूलर चेन्स एंड लॉन्ग चेन पॉलीमर आर बॉन्डेड टू ईच अदर विद वंडर वॉल बॉन्ड्स. बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. क्या हम देखते हैं कि ये दोनों लिंक हैं? हमें अगर दोनों स्टेटमेंट को लिंक कराना है तो हम बीच में बस बिकॉज लगाते हैं और हम चेक करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट लिंक होते हैं कि नहीं. सो लॉन्ग चेन पॉलीमर आर वीकर देन मोस्ट सेरामिक एंड मेटल बिकॉज द मॉलिक्यूलर चेन इन लॉन्ग चेन पॉलीमर आर बॉन्डेड टू ईच अदर विद वॉन्डर वॉल बॉन्ड्स. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जो लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं वो बेसिकली वॉन्डर वॉल के थ्रू ही जुड़े होते हैं, इस वजह से वो आपकी वीकर होते हैं सेरामिक या मेटल से. सो हियर स्टेटमेंट ए विल बी द राइट आंसर, यानी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Move to the next question. Which one of the following is termed as a sacrificial protection of metal? Galvanization, tanning, organic coating, inorganic coating. तो जो आप मेटल के प्रोटेक्शन के लिए आप एक जिंक की लेयर लगा देते हैं किसी भी आयरन रॉड या मेटल पर ताकि उस पर कोरोडिंग ना हो सके, जंग ना लग सके, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, जिसमें आप जिंक की एक परत को लगाते हैं. हेयर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर.
Move to next question. The material used in the production of bearing is cast iron, babbitt metal, pig iron, steel. Here the correct option is babbitt metal. Babbitt metal को हम basically production के लिए use करते हैं bearing के. ये आपके straight forward आपके question and answers अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आप इसको mark कर पाएंगे easily. Next question is mechanically perlite has a property intermediate between the soft ductile ferrite and the hard brittle cementite. Second statement is alpha iron can be made using the magnetic above 768 डिग्री सेंटीग्रेड. ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. जो आपका अल्फा आयरन होता है उसके लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है वो 768 से कम चाहिए होता है. सो अल्फा आयरन कैन बी मेड magnetic below 768 degree centigrade. Here the statement 2 is wrong and statement 1 is correct. So option C will be the right, यानी statement 1 correct है and statement 2 wrong है. Move to the next question. Malleable cast iron is produced by quick cooling of cast iron, by adding magnesium to molten cast iron, फ्रॉम वाइट कास्ट आयरन बाई अनेलिंग. तो यहाँ तीनों दिए हुए हैं मेथड. मैंने इसको प्रॉपर आयरन जब मैंने सब्जेक्ट शुरू किया, आपका आयरन टॉपिक शुरू किया है, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ कवर की है. तो जो आपका मेलेबल कास्ट आयरन होता है बेसिकली वो वाइट कास्ट आयरन से अनीलिंग प्रोसेस के थ्रू बनता है. हियर ऑप्शन सी विल बी राइट. नेक्स्ट मूव टू, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आपका यूपीएससी का जो पूछा जाता है. क्रिटिकल टेम्परेचर अबव विच द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केल्विन, क्यूरी पॉइंट, रिक्रिस्टलाइजेशन, सेल्सियस पॉइंट्स. तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी पॉइंट. अगर यहाँ पर ही आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक पूछ देता है तो नील टेम्परेचर आ जाता है. तो ये सब छोटी छोटी डिफरेंसेस आप याद रखिएगा. Next, atom can neither be created nor be destroyed. Second statement is under similar condition of temperature and pressure, equal volume of gases do not contain equal number of atoms. This statement is wrong. Under similar condition of temperature and pressure, equal volume of gases contain an equal number of atoms. So यहाँ पर आपका second statement गलत है, first statement सही है. तो आपका जो option हो जाएगा वो C हो जाएगा, यानी statement 1 is right and statement 2 is wrong. Move to next question. The size of hydrogen balloon increases as it rises in the air. बिल्कुल सही बात है. अगर आप हाइड्रोजन बैलून खरीदते हैं तो वो जैसे ही आपके हाथ से छूटता है वो हवा में चला जाता है. Statement 2 is the material of the balloon can be easily stretched. हाँ, जो मटेरियल यूज़ करते हैं बलून का वो इजीली स्ट्रेच हो जाता है, तभी आप उसमें हवा भर सकते हैं. बट क्या यही रीज़न है कि जो आपका बलून है वो आपका हवा में जाता है तो इंक्रीजेज एज इट राइजेज इन द एयर? नो. द साइज ऑफ द हाइड्रोजन बलून इंक्रीजेज बिकॉज एट द हाइट एटॉमिक pressure is decreases. This is the correct reason. So यहाँ पर both the statement are correct but they are not interlinked with each other. तो यहाँ पर statement B हो जाएगा. Next, move to high strength super duralumin alloy are adopted in the manufacture of aero engines. बिल्कुल सही बात है. Second is precipitation heat treatment is adopted for a duralumin product. बिल्कुल सही बात है. precipitation heat treatment को ही हम बनाते हैं duralumin को प्रोड्यूस करने के लिए, बट दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा. स्टेटमेंट 1 and 2 both are correct but they are not interlinked. Move to the next question. Metal carbide and carbon are used as a refractories as they resist oxidation. Metal carbide and carbon are not particularly suitable for high temperature. Statement 2 is wrong. मेटल कार्बाइड और जो कार्बन होते हैं बेसिकली हाई टेम्परेचर के लिए सुटेबल होते हैं. तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 2 विल बी रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 1 इज राइट. यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका. स्टेटमेंट 1 इज राइट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ग्रिलेज फाउंडेशन. इट इज प्रोवाइडेड फॉर हैवी लोडेड आइसोलेशन कॉलम. इट इज ट्रीटेड एज अ स्प्रेड फाउंडेशन. इट कंसिस्ट ऑफ अ 2 set of perpendicularly placed steel column. So all the statement are correct related to ग्रिलेज फाउंडेशन. ग्रिलेज फाउंडेशन को बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि जो स्टील की जो आपके रॉड्स होती हैं इसको एक के ऊपर एक लगाने के लिए. इट कंसिस्ट ऑफ अ 2 set of perpendicularly placed steel columns. So here D option is correct. 1, 2 and 3 all the statement are correct. The process of removing irregular portion of stone and facilitating their easy transportation is known as squaring, reticulating, dressing, pointing. Correct statement is dressing. Dressing ही basically आप क्या कहलाता है कि जो आपका irregular portion है उनको remove करना है stone के और उनको easy transportation पहुंचाना है. The correct answer is dressing. What is the volume of FCC unit cell in terms of atomic radius? तो ये जो वॉल्यूम और रेडियस का जो एक आपका रिलेशन होता है FCC का या आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक का या सिंपल क्यूबिक का, ये प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा. यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. मैंने प्रॉपर इसका चार्ट बनाकर अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल आपसे BCC या सिंपल क्यूबिक से रिलेटेड ये आपका जो रिलेशन है ये पूछा जा सकता है.
तो होपफुली आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है और आपको ये हेल्प मिल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ग्रोथ करने में हेल्प कीजिए। प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए स्टूडेंट। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।